Hello guys, welcome. I am Pardeep Sharma. Today we are going to start the new topic nutrition in human beings. In human being, which type of nutrition takes place? Can you give me the answer? I am waiting for your answer. Write down in the comment box. Just we are writing in human being holozoic type of nutrition is taking place. In holozoic type of nutrition, the different steps are there. First step that is called ingestion. You can write. Second step that is digestion. Third step absorption. Fourth assimilation. Fifth stage egestion. Repeat कर रहा हूँ. Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestions. Ingestion, taking of food. Digestion, complex substances broken down into simpler one. After digestion, absorption. Digested food product is absorbed in the blood. Assimilation, absorbed food product is transferred to each and every cell where energy is produced. Absorption. Last one, final egestion, where waste product is removed from the body. That is called egestion. That are the 5 steps of the holozoic type of nutrition. Clear? Now, in human being, holozoic type of nutrition is taking place. It is completed at various parts or organs. Before start to this process, we have a simple activity. What does this activity says? You have to take 1 ml starch solution 1% in 2 test tube A and test tube B. We have starch. You know starch is a carbohydrate, right? In earlier section already we have conducted a iodine test for the starch is prepared or not in process photosynthesis, right? So now add a few drops of dilute iodine solution to the test tube, right? 1 minute. Second step, add 1 ml saliva to test tube A. In test tube A we add saliva but not in B. Now add dilute solution to A and B, and we have to change in which test tube the color is changed. Can you tell me? Can you give me the answer? You know, in the first test tube starch is there and saliva is there. We know that saliva contain an enzyme salivary amylase, and salivary amylase enzyme digests the starch. So starch will be digested. There will be no starch right now in this test tube A. So when we add dilute solution of iodine in test tube A, iodine is not able to react with the starch because starch is not present in the test tube A because it is digested by salivary amylase enzyme. So there will be no blue black color is seen in the test tube A, but in test tube B no salivary amylase is there, so starch is present. Starch react with iodine and it will show the blue black color. क्लियर है? ओके. जिसने पीछे वाले लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, वो इस एक्टिविटी को समझ सकते हैं. अब आगे चलते हैं. आगे चलने से पहले मैं आपको डायग्राम समझाना चाहूँगा, उसके बाद उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारी क्लियर कर दूँगा. देखिए, अपनी एलिमेंट्री जो कैनाल है उसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक पार्ट में अपन पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे एसेसरी ग्लैंड्स. आपकी एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होगी. माउथ से कहाँ आएगी जी? ओरल कैविटी यानी आपकी बकल कैविटी आएगी. बकल कैविटी से आपका फेरिंग्स आएगा. फेरिंग्स से ईसोफेगस आएगा. ईसोफेगस से स्टमक आएगा. स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एनएस के अंदर आपकी ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी एलिमेंट्री कैनाल. यानी आपकी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पे कंप्लीट हो जाती है. ये पढ़ेंगे अपन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर.
सेकंड चीज़ मैं बात कर रहा था एसेसरी ग्लैंड की। एसेसरी ग्लैंड के अंदर अपन 3 ग्लैंड पढ़ेंगे। फर्स्ट ओरल कैविटी के अंदर पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड अपन पढ़ेंगे आपकी लीवर, और थर्ड पढ़ेंगे अपन आपकी पैंक्रियाज। ये 3 ग्लैंड अपन पढ़ेंगे, इनके सिक्रेशंस पढ़ेंगे, इनका क्या क्या फंक्शन होता है डाइजेशन के अंदर, ये सारी चीज़ अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया? दिमाग में एक फ्लो चार्ट बन जाना चाहिए, राइट। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं कि अपन ने इंजेक्शन लिया, फूड अंदर ले लिया, फूड अंदर लेने के बाद डाइजेशन कैसे होता है वो सारी चीज़ देखेंगे। लेकिन देखने से पहले अपन को स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तो मैं स्ट्रक्चर की तरफ फोकस कर रहा हूँ। देखिए ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा पोर्शन हो गया? नोज वाला हो गया, ठीक है। ये माउथ वाला है जिसके अंदर आपके टंग भी होती है एंड टीथ होती है। कहाँ पे होती है? माउथ के अंदर, यानी बकल कैविटी की अपन बात करें, स्पेशली ओरल कैविटी की बात करें, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका फेरिंग्स आता है, ये फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स आपका कौन सा होता है? कॉमन पाथवे होता है ना, आपका ट्रैकिया और ईसोफेगस दोनों के लिए। और फिर ये जो पार्ट होता है लॉन्ग ट्यूबुलर जो पार्ट होता है वो आपका ईसोफेगस होता है, ठीक है। ईसोफेगस के बाद जो मूवमेंट होता है, देखिए फिर ये आपका ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, वो स्टमक आता है, ठीक है। स्टमक के ऊपर इधर आप देख सकते हैं, आपको लीवर दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है ये लीवर, इसमें 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ठीक है। गॉल ब्लैडर, ये लीवर और गॉल ब्लैडर डक्ट के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है, इधर आप देख रहे हैं स्मॉल लाइन जो आ रही है, इधर से आपका पैंक्रियाज है, इधर से डक्ट जा रही है। बाइल डक्ट आपकी गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है सिस्टिक डक्ट, और आपकी पैंक्रियाज से डक्ट आ रही है, जो ट्यूब्स आ रही है वो आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुल रही है, ठीक है। स्टमक के बाद का जो पोर्शन आता है आपका, ये हाईली कोइल्ड जो ट्यूबुलर जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, है ना, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपकी यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे जुड़ती है वहाँ पे एक वेस्टिगल ऑर्गन्स होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं, है ना। अपेंडिक्स का अब कोई डाइजेशन में रोल नहीं होता, अर्ली टाइम्स में इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, लेकिन आजकल इंपॉर्टेंट कोई इसका रोल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेस्टिगल ऑर्गन, सिर्फ अवशेष है इसका। फिर आपके यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। एक्चुअली में जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट्स के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, सिर्फ नाम बता रहा हूँ आप, ड्यूडोनम, जिजूनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, सिकम, कोलन और रेक्टम जो होते हैं, है ना। फिर ये जो ओपनिंग होती है, लास्ट वाली पार्ट होती है, उसको अपन एनस के नाम से जानते हैं। ये आप पूरी स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं। ये आपका डायफ्राम वाला पोर्शन है जो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डायफ्राम के नीचे आपके ये इधर लीवर होता है, इधर पैंक्रियाज होता है ना, ये स्टमक होता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कोइल्ड ट्यूबल्स होती है, फिर आपका अपेंडिक्स आ जाता है, फिर आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। तो ये जो डायग्राम मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये डायग्राम आपको चाहे एक बार बनाना पड़े या 10 बार बनाना पड़े, आपको इस डायग्राम के साथ फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आपको डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक लेकर के साथ में बैठें, डायग्राम को अच्छे से बनाएं, प्रिपेयर करें और फिर मेरे साथ जुड़ जाइए। अब अपन स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। देखिए डाइजेशन की मैं बात करता हूँ, 1 मिनट। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जो डाइजेशन होता है वो माउथ ओरल कैविटी के अंदर क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ ओरल कैविटी जो होती है वहाँ पे 2 टाइप का डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन को अपन फिजिकल डाइजेशन भी कहते हैं। जैसे माउथ के अंदर ओरल कैविटी में फूड लिया, इसके अंदर अपने पास क्या होते हैं? टीथ होते हैं, ठीक। अब टीथ हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसाइजर जो होते हैं और जो कैनाइन होते हैं, कैनाइन स्पेशली आपके कार्निवरस जो होते हैं उसमें हाईली डेवलप होते हैं। प्री मोलर और जो मोलर होते हैं वो जो हर्बीवरस यानी जो ग्रासेस जो खाने वाले होते हैं उनके अंदर हाईली डेवलप होते हैं, ठीक है। मेन इनका काम च्यूइंग का होता है, इनका इंसाइजर वगैरह इनका बाइटिंग का होता है, इनका टीयर ऑफ करने का होता है, जो स्पेशली जो मीट होते हैं जो उसका फ्लैश जो होते हैं उसको टीयर ऑफ करने में काम आते हैं। तो आपका जो टीथ होता है वो आपने जो भी फूड लिया है उसको क्या करेगा? स्मॉल पार्ट्स के अंदर क्या कर देगा? तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। आपके जो ओरल कैविटी में जो सैलिवरी ग्लैंड है वो क्या करेगी? सलाइवा का सिक्रेशन करेगी, एक वाटरी लिक्विड का सिक्रेशन करेगी। वो वाटरी लिक्विड आपका क्या होता है? सलाइवा होता है। तो
फूड का जब मेस्टिकेशन हो गया, फूड को जब तोड़ दिया है, स्मॉल कंपोनेंट्स में जब ब्रेक डाउन कर दिया है, तो सलाइवा को प्रॉपरली उस मेस्टिकेटेड फूड के साथ मिक्स करने का जो काम करती है वो आपकी कौन होती है? टंग होती है। टंग क्या करेगी? जो फूड है उसको प्रॉपरली उसके साथ मिक्स करेगी ताकि आपका जो फूड है वो क्या हो जाए? वेट हो जाए, यानी ल्यूब्रिकेट हो जाए, चिकना हो जाए, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे मूव नहीं करेगा। ठीक है, इस टाइप का ये जो डाइजेशन जो होता है वो कौन सा डाइजेशन होता है? जिसको अपन मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी जो टीथ है उसको वो क्या करेगा? जो फूड है, लार्ज कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको ब्रोकन डाउन करेगा सिंपलर पार्ट्स के अंदर। ठीक है, और इस प्रोसेस को अपन मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं। प्रॉपरली मिक्सअप करने का जो काम है सलाइवा का, उसको टंग करती है, यानी टंग है वो प्रॉपरली मिक्सिंग का काम करती है, और जो फूड है उसको स्वेलो करने का काम करती है, निगलने का काम करती है। राइट। फिर सेकंड बात कर रहे थे अपन केमिकल डाइजेशन की बात। केमिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है? सेलेवरी अमाइलेज जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम का नाम होता है सेलेवरी अमाइलेज। और बुक के अंदर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिखेगा, नाम लिखा हुआ दिखेगा, टाइलिन एंजाइम। इसमें पी साइलेंट होता है, पटाइलिन नहीं होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। तो ये सेलेवरी अमाइलेज और जो टाइलिन होता है ये क्या करेगा? जो आपके फूड के अंदर जो स्टार्च है ना, उसको क्या कर देगा जी? माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये स्टार्च और माल्टोज दोनों ही शुगर होती हैं, लेकिन स्टार्च है एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, यानी इसको अपन कहते हैं डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये आपका स्टार्च है वो पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज आपका डाइसेकेराइड होता है। यानी ये कॉम्प्लेक्स जो फूड है, शुगर का जो फॉर्म है, उसको सिंपलर वन में वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो इस टाइप का डाइजेशन जो होता है जिसमें केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, केमिकल की हेल्प से डाइजेशन होता है, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। इस टाइप को अपन केमिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें स्टार्च डाइजेस्ट होकर के माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। माल्टोज आपकी मीठी शुगर होती है। जैसे आप पोटैटो खाते हो, है ना, पोटैटो खाते हो तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता वहाँ पे, है ना। आप लंबे समय तक पोटैटो है या फिर आपका राइस है ना, इसको मुंह में रखेगो, या आपकी जो ब्रेड होती है, तब आपको स्वीटनेस आती है, मीठापन जो है ना वो आपको लंबे समय बाद में पता चलता है, क्योंकि जब उसका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है ना, तब वो माल्टोज में कन्वर्ट होती है। मोस्टली क्या होता है कि माउथ के अंदर जो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो कितना परसेंट होता है? ओनली 30% डाइजेशन होता है। बाकी जो 70% है ना वो माउथ के अंदर नहीं होता है, वो आगे जाके होता है। अब आगे जाके कहाँ होगा? आगे पार्ट्स आएगा, अपन बता देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। तो ये होगा माउथ के अंदर। माउथ में डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड है ओरल कैविटी से कहाँ आएगा? फेरिंग्स में आएगा, ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ईसोफेगस जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है उसमें जो फूड जो मूव करता है वो मूव कैसे करता है कि इसके अंदर जो मसल्स होती हैं, है ना, ये मसल्स क्या करती है? रिदम के साथ में कॉन्ट्रैक्शन करती है ना, फिर रिलैक्स करती है, जिससे क्या होती है कि वेव प्रोड्यूस होती है, और इस वेव के प्रेशर से क्या करता है? आपका जो फूड है ना वो प्रॉपर्ली मूव करता है। इस सारी प्रोसेस को अपन ने एक टर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द फूड दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट आप समझ गए होंगे क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से ही जो फूड होता है वो ईसोफेगस में मूव करता है। क्लियर होगी? अब एक वर्ड और आएगा यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ईसोफेगस से जो फूड है वो स्टमक में आ रहा है, तो जहाँ पे ये दोनों की जो पार्ट मिल रहे हैं वहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है। क्या होता है जी? स्पिंक्टर होता है। अब स्पिंक्टर का मतलब मीनिंग क्या होता है? जैसे आपका जो गार्ड नहीं होता वो क्या काम करता है? जो भी आता है उसको कंट्रोल करता है, रोकता है, उसकी डिटेल्स देता है ना। तो ये क्या करेगा? जो फूड ईसोफेगस से स्टमक में आया तो डायरेक्टली आकर के इसमें गिरे नहीं, है ना। फूड का मूवमेंट है वो कंट्रोल करने का काम यहाँ पे करते हैं। उस ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको अपन क्या कहते हैं? स्पिंक्टर के नाम से जानते हैं। वो वहाँ पे स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है। ये आगे हर पार्ट्स में मिलेगा अपन को, डिटेल के साथ आप 11th क्लास की बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? ये स्पिंक्टर इसने कंट्रोल किया, फूड जो धीरे धीरे वो कहाँ आ जाएगा? आपके स्टमक के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये स्टमक है। अब इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, स्टमक में आ गया। स्टमक में आते ही क्या होगा? स्टमक के अंदर 3 जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो 3 चीज़ का सिक्रेशन करेंगी। फर्स्ट आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होगा, आपका म्यूकस का सिक्रेशन होगा, और एक एंजाइम है उसका सिक्रेशन होगा। एंजाइम का नाम है पेप्सिन। ध्यान से समझना, आप नोट्स बना सकते हैं, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ बता रहा हूँ आराम से।
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन, म्यूकस का सिक्रेशन होगा, पेप्सिन का सिक्रेशन होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से पता चलता है एसिड है, तो इसका फंक्शन क्या होगा? देखिए, एक तो ये क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, यानी जो भी फूड के साथ में जो बैक्टीरिया या जो जम्स आएंगे उनको वो क्या करेगा, किल करने का काम करेगा। सेकंड चीज़, आपका जो एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है वो जब सिक्रेट होता है तो एक इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिक्रेट होता है। किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, जिसको पेप्सिनोजन कहते हैं। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है। अब पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है, पेप्सिन जो है वो उसकी कौन सी है? एक्टिव फॉर्म होती है, और पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। और एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ही पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम है वो पेप्सिन एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये HCl का सेकंड फंक्शन हो गया। समझ आ गई मेरी बात? पेप्सिन है ना, वो इनएक्टिव, पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम से पेप्सिन एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी HCl की रिक्वायरमेंट होती है। HCl जो होता है वो क्या करता है? एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। क्लियर होगी? फिर बात करते हैं म्यूकस की। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या होता है? कोरोसिव नेचर का होता है, और इसकी जो वॉल होती है उसको कोई डैमेज नहीं हो इस एसिड के इफेक्ट से, तो म्यूकस क्या करता है? इसके ऊपर चारों तरफ एक कोटिंग बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसकी वॉल को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ये म्यूकस का फंक्शन हो गया। अब अपन बात करते हैं पेप्सिन की। देखिए, आपका जो पेप्सिन है वो नेचर के अंदर कैसा होता है? प्रोटियोलिटिक नेचर। 1 मिनट। तो प्रोटीन, आपका जो पेप्सिन होता है उसका नेचर कैसा होता है? प्रोटियोलिटिक नेचर। प्रोटियोलिटिक नेचर का मीनिंग ये हो गया कि प्रोटीन, लाइटिक का मतलब डाइजेशन, यानी ये जो एंजाइम्स होता है वो क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। नाम से समझ में आ गया? प्रोटियोलिटिक नेचर। प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, लिटिक मीन्स डाइजेशन, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है वो आपके स्टमक में सीक्रेट होता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है जी? पेप्सिन। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक की तरफ लेके जाता हूँ। वैसे हर चीज़ आपको समझनी है, उसका सॉल्यूशन ट्रिक नहीं होता है, फिर भी दो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स अपने सामने आएंगे। एक आएगा आपका पेप्सिन, एक आएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, दोनों ही प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, यानी दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन कौन सा कहाँ आता है? आपको एक याद रखना है, पेप्सिन। और पेप्सिन कहाँ सिक्रेट होता है? स्टमक में सिक्रेट होता है। अब बोले याद कैसे रहेगा? ट्रिप्सिन के साथ मिक्स तो नहीं हो जाएगा? आप पेप्सिन से याद रखिए, पेप्सी जो पीते हैं वो कहाँ जाती है जी? स्टमक में जाती है। और स्टमक में क्या सिक्रेट होता है? पेप्सिन सिक्रेट होता है। बात समझ में आ गई? तो प्रोटीन का डाइजेशन आपका कहाँ हो गया? स्टमक में हो गया। अब थोड़ा सा अपन और आगे की तरफ चलते हैं। स्टमक से फूड डाइजेस्ट हो गया, उसको अपन काइम कहते हैं। 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ। 4 to 5 आवर्स तक इसके अंदर पड़ा रहता है, फिर वो वहाँ से मूव करके आता है। यहाँ भी स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होंगे ओबियसली। मूव करके आने के बाद ये जो फूड है वो आपका कहाँ आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा? 3 जूस सिक्रेट होंगे, तीनों अलग अलग काम करेंगे। फर्स्ट आपका होगा बाइल जूस, ध्यान से समझना, मोस्टली क्वेश्चन आता है। सेकंड आपका होगा पैंक्रियाटिक जूस। थर्ड आपका होगा इंटेस्टिनल जूस। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऊपर से गोल ब्लैडर के थ्रू आपको दिख रहा है, इधर से बाइल जूस आएगा, पेंक्रियास से पैंक्रेटिक जूस आएगा, और इंटेस्टाइन खुद सिक्रेट करेगा इंटेस्टिनल जूस। ये तीनों जूस मिलकर के कंप्लीट डाइजेशन फूड का कर देते हैं। कौन कौन क्या क्या फंक्शन करता है, 1 by 1 अपन लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। लीवर क्या करता है? लीवर के अंदर जो हिफेटिक सेल्स होती हैं, है ना, वो सेल्स क्या करती हैं? बाइल जूस का सिक्रेशन करती है। बाइल जूस वहाँ से मूव करके आपके गोल ब्लैडर में आता है, वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन होता है, और फिर गोल ब्लैडर से जो आपका बाइल जूस है वो कहाँ आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। अब बाइल जूस है, उसका फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि बाइल जूस क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वर्ड का मीनिंग समझ लेना यहीं पे। इमल्सिफिकेशन का मीनिंग ये होता है, सिंपल सा, इसको समझने से पहले मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पूरा माउंटेन दे दिया आपको, और एक दे दिया आपके पास हैमर। आपको कह दिया कि इस हैमर से आपको क्या करना है, इस माउंटेन को तोड़ना है। क्या आप तोड़ पाएंगे? बोलो, नहीं तोड़ पाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, आप ये बोलेंगे कि इस माउंटेन को हमें पहले किसी बड़ी मशीन से उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, और फिर अपन उसको हैमर से तोड़ देंगे। इजी होगा ना अपने लिए। बस सेम प्रोसेस इसी के लिए अंदर ऐसा ही होता है। आपके अंदर क्या होता है, अपने पास एक एंजाइम है। एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज। ठीक है। अब लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते, उसको डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है। तो क्या होता है, ये बाइल जूस क्या करेगा, ये जो फैट के ग्लोब्यूल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स के अंदर तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मीनिंग ये हो गया, डाइजेशन ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वन, छोटे पार्ट के अंदर उसको डिवाइड करना, उसको ब्रेक डाउन करना, वो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन होने के बाद ये हो गया फंक्शन किसका, बाइल जूस का। बात समझ में आएगी। बाइल जूस का सिंपल सा एक ही फंक्शन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, लिख लीजिएगा आप। अब सेकंड जूस की मैं बात करता हूँ। सेकंड जूस मैंने आपको कौन सा लिखवाया था, पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रियास सीक्रेट द पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रेटिक जूस जो होता है उसमें दो एंजाइम्स होते हैं, एक आपका होता है ट्रिप्सिन, सेकंड आपका होता है लाइपेज। अब फैटी जो आपका जो फैट ग्लोब्यूल्स लार्ज जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स था, वो बाइल जूस के कारण क्या हो गए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। अब क्या करेगा, आपका लाइपेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और जो आपका फैट है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यानी स्मॉलर पार्ट के अंदर उसको डिवाइड कर देगा। ये फंक्शन किस एंजाइम का हो गया, लाइपेज का हो गया। फिर बचा कौन सा जी, आपका ट्रिप्सिन बचा। ट्रिप्सिन अपन ने पहले डिस्कस किया था। ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करेगा, प्रोटीलिटिक नेचर का होता है, तो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करेगा और स्मॉल पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये डाइजेशन किसका हो गया, पैंक्रेटिक जूस का हो गया। पैंक्रेटिक जूस का डाइजेशन अपने पढ़ लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है सारा काम। एक चीज़ मैं पेंक्रियाज के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पेंक्रियाज के बारे में अपने पढ़ा है, पेंक्रिया है यहाँ पे जूस भी बना रहा है और वहाँ पे हार्मोन भी बनाता है। इसी वजह से अपन इसको मिक्स ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। एंडोक्राइन का भी फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन का भी फंक्शन करता है। यहाँ पे अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो एक्सोक्राइन का फंक्शन पढ़ रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब अपन थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। फूड का कंप्लीट डाइजेशन अभी हुआ नहीं है। अभी कौन सा जूस बच गया, थर्ड जूस मैंने आपको बताया था इंटेस्टिनल जूस, या उसका दूसरा नाम होता है सक्कस एंटेरिकस। अब इंटेस्टिनल जूस क्या करेगा, जो भी रिमेनिंग है, जो भी बचा हुआ है डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, न्यूक्लिक एसिड, जो कुछ भी बचा हुआ है उनका कंप्लीट डाइजेशन कर देगा और एकदम सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब्जॉर्बेबल फॉर्म का मतलब एकदम सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट कर देगा और डायरेक्टली वहाँ से क्या हो जाएगा, उसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा बॉडी के अंदर। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ टेकिंग प्लेस बाय द इंटेस्टिनल जूस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, वॉट एवर आर दैट, जो भी होगा उसको एकदम सिंपल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा और डायरेक्टली उसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये आपका डाइजेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है, यानी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो बचा है अपने पास, उसका क्या होगा। दोनों चीज़ मैं आप डिस्कस करता हूँ। यहाँ से अपन दो रूट को चलेंगे। एक तो आपका डाइजेस्टेड फूड हो गया, एक अनडाइजेस्टेड फूड हो गया। डाइजेस्टेड जो फूड है वो तो क्या करेगा, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी स्ट्रक्चर यदि अपन देखें तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स होती है और इसको अपन विलाई के नाम से जानते हैं, ऐसे, है ना, इसको विलाई के नाम से। ना विलाई पे भी स्मॉल माइन्यूट्स ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होती है, जिसको अपन माइक्रो विलाई के नाम से जानते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई और माइक्रो विलाई की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये सरफेस एरिया विलाई और माइक्रो विलाई का क्या करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा और अब्जॉर्ब करने के बाद में ये डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा और ब्लड से मिक्सअप होने के बाद वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेल के पास पहुँच जाएगा, यानी एसिमिलेशन हो जाएगा, वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा। ये पाथवे मैंने बताया आपको डाइजेस्टेड फूड का।
अब अनडाइजेस्टेड फूड यानी फूड का जहाँ पे डाइजेशन नहीं हुआ, जो फूड बच गया, उसका क्या होगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करते हुए कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? कोई डाइजेशन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक काम होता है, और इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आ ही जाता है छोटा क्वेश्चन। वाटर का अब्जॉर्प्शन, जो भी एक्सेस अमाउंट में इसमें वाटर है, उस वाटर का क्या हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और ये मूव करता हुआ लास्ट पार्ट रेक्टम तक आता है, और एक स्मॉल ओपनिंग जो होती है एनस, उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया है, इसको ढंग से सुने, ध्यान से सुने, अच्छे से समझे। पूरा का पूरा जो प्रोसेस आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया गया एज इट इज़ मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो वापस आप लिखें, नो डाउट, विदाउट हेजिटेशन। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप डाउट बॉक्स में लिखें, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको ये टॉपिक, उम्मीद है मुझे कि आपको ये पसंद आया होगा। डेफिनेटली यदि आपको पसंद आता है तो इसके बारे में आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।